اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 18 سے تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 18 onwards ہم پڑھ رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کویشچن کیا کہ کیا پھر نہیں انہوں نے دیکھا اونٹ کی طرف، کیا اونٹ کیمل کو نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، کس طرح وہ پیدا کیا گیا، کیسے اسے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے کیمل کو پیدا کیا. ابھی یہ ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ صرف غور و فکر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو ذرا اونٹ کو، کیمل، اور سو ابنڈنٹلی اویلیبل اینڈ سین ان دا عرب پیننسولا. کیا کیملز، کیا زبردست مخلوق ہم نے دیکھے لاسٹ کلاس میں. اب آج ہم پڑھیں گے آگے آیت نمبر 18. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور طرف آسمان کے، کیف رفعت، کس طرح وہ بلند کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیسے اونچے اٹھایا ہوا ہے، کتنا بلند کیا ہوا ہے آسمان کو. Haven't they seen towards the skies how they have been raised so high. تو ابھی کیا ہم نے آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے آسمان؟ سالڈ، لکوڈ، گیس؟ کیسا ہوتا ہے آسمان؟ سالڈ ہے، لکوڈ ہے یا گیس ہے؟ بتائیے. It is not solid, it is not liquid, but it's something which we observe. کریکٹ. نہ سالڈ بھی نہیں ہے، لکوڈ بھی نہیں ہے،
गैशियस, हाँ थोड़ा बहुत गैशियस तो है, काफी सारा गैशियस है। तो हम तो इसकी हकीकत भी नहीं समझ सकते कि अल्लाह ने आसमान को कैसा बनाया, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाई है। अरूफ, हमारे घर की रूफ तो सॉलिड होती है, वेरी स्ट्रांग, और इतनी छोटी छत हो या बड़ी, उसके लिए पिलर्स की जरूरत है। पर अल्लाह ने ये कैसी छत बनाई कि उसके कोई पिलर्स भी नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर भी आसमान को इतना ऊपर ऊंचा हमारे लिए एक शील्ड बना लिया। जैसे आप एक छतरी भी पकड़ते हो, छाता, तो वो छतरी का हैंडल होता है ना, उसी तरह आसमान भी हमारे लिए एक शील्ड है, छतरी है, पर उसका कोई ना हैंडल है, ना सपोर्ट है, ना पिलर है। तो ये कौन कर सकता है? और ये कितनी जबरदस्त क्रिएशन है अल्लाह की। तो अगर अल्लाह की पावर्स और उसकी कुदरत को देखना चाहते हो, तो जरा आसमान की तरफ देख लो। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि आसमान की तरफ देखो, फिर से अपनी निगाह दौड़ाओ, वापस देखो, तुम्हारी आंखें थक जाएगी, हार जाएगी, पर तुम उस आसमान में कोई नुक्स, कोई फॉल्ट ढूंढ नहीं पाओगे, नजर नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज अल्लाह ने फ्लॉलेस, जबरदस्त आसमान बनाया है। आसमान हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस रखता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द स्काई, जरा बताइए आप लोग। It's like a canopy for us. Chat. लाइक अ कैनपी, छत, नंबर वन, वेरी गुड। और कोई बताएगा नंबर टू, आसमान का क्या मकसद है? और जल्दी जल्दी बोलिए को होस्ट। अल्लाह के हुक्म से वहां से बारिश होती है। हाँ, आसमान से बारिश बरसाता है। ओके, वेरी गुड। सो इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ फॉर अस। नंबर थ्री, जल्दी जल्दी बोलिए। तहजीब, नसरीन। Yeah, protection from ozone भी, जैसे direct sunlight is not reaching us, so it's like safe for us ना आवाजी। हाँ, क्योंकि सनलाइट जो है वो इतनी पावरफुल है, उसकी यूवी रेज हमें खत्म कर दे, तो अल्लाह ताला ने उससे प्रोटेक्शन रखा है। एक जैसे हमारे लिए एक जाली होती है, उस तरह उसे प्रोटेक्ट किया है। यस, नसरीन। जी बाजी, अल्लाह की रहमत आती है आसमान से, दुआएं जाती आसमान है से ऊपर। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और हमारी दुआएं ऊपर चढ़ती है। बहुत अच्छे। और मुकद्दसा? बाजी, सितारों से और चांद से अल्लाह ताला ने सजाया है, रात को खूबसूरत बनाया है। वेरी गुड। आसमान को सजा दिया है सूरज, चांद, सितारों से। नाइस। बाजी जुबेदापा, वही सना बोलो। ही उतरती है बाजी, जिससे हमको कुरान मिला। वही नाजिल होती है। वेरी गुड। आसमान से वही नाजिल की जाती है। नाइस। और जुबेदापा? स्टार्स, आसमान में स्टार्स है जो रास्ता बताते हैं, मून है, और सूरज की सन की रेज भी आती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो, और क्लोरोफिल बनाते हैं प्लांट्स उससे। वेरी गुड। तो देखिए कि हम जानते हैं कितने फायदे हैं, और अल्लाह ने हमारे फायदे की चीज हमारे लिए बनाई है, लेकिन कैसे? फ्री ऑफ चार्ज। डू यू हैव टू पे फॉर द स्काई? टेल मी, सुरैया शेख। बाजी, जब दुआ मांगने का रहता है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं बाजी, दुआ के लिए। दुआ के लिए आसमान की तरफ देखते। वेरी गुड। हाँ, तो अगर हमारा घर है और हमारे घर की छत है, यू हैव टू पे फॉर इट, बट हैव वी पेड एनीथिंग फॉर द स्काई? क्या कोई पेमेंट है हमारे लिए? Not at इतनी all. जबरदस्त, हाँ, एंड सच अ मल्टी फंक्शनल आसमान, और उसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया हुआ है। और फिर वो बनाने वाला, अगर ये आसमान इतना जबरदस्त है,
تو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا. تو this is how we have to ponder. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یہ ان کا معمول ہوتا تھا. ایکسکیوز می. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا ہم اس سنت کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر بے ساختہ ہماری زبان سے نکل آئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے نیچرل تسبیح جو ہمارے دل سے نکلے جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو. احساس تو تب ہوگا جب ہم گھر سے باہر نکلے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھے. کیا خوبصورت آسمان. ہر وقت دیکھو تو اس کا نظارہ الگ، اس کے کلرز، شیڈز، ایز اف کوئی پینٹر بیٹھا ہے اور ہر وقت ایک نیا شیڈ اس میں پینٹ کر رہا ہو. تو کون ہے یہ؟ ایسا ہمارا رب علی کل شیء قدیر. تو پھر اس کی کیا بات اور اس کی کیا شان اور پھر کتنا شکر اور پھر ایمان کہاں ہے. تو اگر یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر ہائے افسوس اس انسان پر. ناؤ آیت 19. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور کہاں دیکھو، إِلَى الْجِبَالِ، طرف پہاڑوں کے. کیا نہیں دیکھا پہاڑوں کی طرف؟ کیف نصبت، کیف کیسے، کس طرح، ہاؤ، نصبت وہ نصب کیے گئے. نصب کیے گئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاڑھے گئے، ٹھوک دیا گیا. ٹھوک دیا گیا، گاڑا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ پہاڑ کتنے اسٹرانگ. وہ ایک مثال ہے اسٹرینگتھ کی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا تو اتنی بڑی زمین وہ ہلنے لگی، started shaking. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیلے ٹھوک دیے. اور وہ کیلے کیا ہے؟ یہ پہاڑ. جگہ جگہ پہاڑ ٹھوک دیے. اور کیلا کیسا ہوتا ہے؟ جب ہم اسے دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو وہ دیوار کے اندر بھی اتنا جانا چاہیے تاکہ وہ مضبوطی سے پکڑ اس کی مضبوط ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جب گاڑے زمین پر تو جتنے وہ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی زمین کے نیچے تک بھی اس کے روٹس ہیں. جیسے ایک ٹری ہوتا ہے، اس کے روٹس زمین میں اس کو اسٹرانگلی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس پہاڑ کو آپ امیجن کرو کہ وہ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہے. اور ایسے اللہ نے اسے اسٹرانگلی طاقت بخشی اور اسے زمین پر گاڑ دیا. پہاڑوں کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین کو بیلنس کیے ہوئے. اور بھی بتائیں گے آپ پہاڑوں کے فائدے؟ اینی بڑی؟ باجی وہاں پہ پیڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے پھر بارش ہوتی ہے. ایک 3 ٹائپس آف رین ہے نا. ایک ٹائپ آف رین ہے جو پہاڑوں کی طرف آ کے بادل رکتے ہیں، وہاں پہ بارش ہوتی ہے. ویری گڈ. تو پہاڑ جو ہے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بھی ماؤنٹینس ہلی ایریاز ہوتے ہیں جیسے ہل اسٹیشن ہم کہتے ہیں تو وہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ ان ایریاز میں پھر بارش زیادہ ہوتی ہے، پھر وہاں سے واٹر فالز ہوتے ہیں، پھر لو لائنگ ایریاز تک وہی پانی پہاڑوں سے نیچے زمین والوں کو بھی وہ پانی واٹر فالز کے ذریعے مل جاتا ہے. پھر پہاڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں اور ان پہاڑوں پر بھی لوگ بستے ہیں. وہاں کا ویدر، وہاں کا کلائمیٹ کس کے لیے بہتر ہوتا ہے؟ فار فارمنگ اور گارڈننگ. گارڈننگ باجی، ٹی برابر، پلانٹیشن. ایگزیکٹلی. تو جیسے
एक एग्जाम्पल है टी प्लांटेशन का। वैसे बहुत अलग अलग टाइप के प्लांटेशंस हैं। तो गार्डनिंग इन पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर बेहतरीन होती है। वहाँ का वेदर, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ की मिट्टी, ये उसके लिए फेवरेबल होती है। पहाड़ों बाजी के अंदर क्या होता है? यस बाजी माता जी। जानवरों को चरने के लिए होता है और ये हम्म, तूफानी हवाओं को रोकते हैं। वेरी गुड। जैसे आपने स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अबाउट द हिमालयाज, कि हमारी कंट्री के नॉर्दर्न साइड पे जो हिमालयाज है, सो दे प्रिवेंट, व्हाट डू दे प्रिवेंट फ्रॉम, एक तो दुश्मनों से भी बचाते हैं, यानी हमारी बॉर्डर को भी सेफ किए हुए हैं। जैसे हम गजवाए ओहद पढ़े थे कि गजवाए ओहद में वो पहाड़ की वजह से फायदा भी हुआ, फिर कुछ नुकसान भी हुआ। फिर यस, एनिमल्स भी ग्रेज करते हैं उस पहाड़ के घास पर। और it also protects from heavy rainfall, from snowfall and from the winds. प्लस पहाड़ों के अंदर क्या होता है ये बताओ अब मुझे। पहाड़ों के अंदर क्या होता है? मिनरल्स। पानी होता है बाजी, आबशार पानी निकलते होता है। हैं। अच्छा, और सना आप तो क्या बोल रहे पहाड़ों थे? की वजह से याजुज माजुज को भी रोका गया ना। पहाड़ों के बीच में, ओके, याजुज माजुज को भी रोका गया, गुड एग्जाम्पल। पहाड़ सना? मिनरल्स होता है बाजी, रिच स्टोन्स, रॉक्स में बहुत मिनरल्स पाए जाते वेरी गुड। तो जितने भी खाने होती है, ओर्स होते हैं, तो जनरली वो पहाड़ों के अंदर से, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने जबरदस्त मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स और कैल्सिफरस रॉक्स, ये क्या होता है कि इसके अंदर से हमको कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन ओर्स, ये सब पहाड़ों के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। यहाँ तक कि कोयला भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो बहुत रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स अल्लाह ने हमारे लिए रख दिया है। ये जबरदस्त फायदे, और इसके अलावा और भी वो बेहतर जानता है अल्लाह हमसे। वी नो वेरी लिटिल। तो अल्लाह ताला ने बता दिया। अब हम देखें और कौन सी तरफ अल्लाह ताला हमें ले जा रहे हैं। आयत नंबर 20। व इलल अर्दी, और क्या नहीं देखा तरफ जमीन के, कई फसुतिहत, किस तरह वो बिछाई गई। ये जमीन, जैसे आसमान का जिक्र हुआ, आसमान के नीचे तले जमीन है, हम इस जमीन पर रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा जमीन को, कैसे इसे बिछा दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अब जमीन के फायदे बताओ, चलो फटाफट। ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हैं। एग्रीकल्चर बाजी। वेरी गुड, वन बाय वन बोलना। एग्रीकल्चर, खेती होती है जमीन पर, राइट। और हम चलते हैं, बस रहे हैं जमीन पर। वेरी गुड, हम जमीन पर चलते हैं और हम इसी पर रहते हैं, बसते हैं। क्यों, कैसे चल सकते हम जमीन पर? आसमान पे क्यों नहीं चल सकते? दिस इज स्टेबल। दिस इज स्टेबल, बिछाई ओके। गई है। ग्रेविटेशन पुल बाजी। ग्रेविटी, एग्जैक्टली। कि ये जमीन एक्चुअली, देखिए अगर हम देखें ना कि अर्थ इज अ प्लैनेट, और अल्लाह ने जितने प्लैनेट्स बनाए हैं, तमाम प्लैनेट्स में से सिर्फ एक जमीन, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हम इस पर, जमीन पर टिके हुए चल सकते। अगर आप दूसरे प्लैनेट्स पर जाए तो वहां पे ग्रेविटी है, नहीं है, कितनी है, वहां पे रहने के लिए क्या ऑक्सीजन है, क्या वहां पर पानी है, क्या वहां पर हवा है, क्या वहां पर खाना उगता है, तो क्या वहां की जमीन, फॉर एग्जाम्पल मार्स, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, कोई भी आप ले लो, वीनस, किसी भी प्लैनेट पर आप रह बस नहीं सकते।
because it is not adaptable for us. फिर हम लोग को बड़ा शौक है वहां जाने का। वो नहीं है हमारे लिए, तो वहां क्यों जाना है? हमारे लिए जो जमीन है अल्लाह ने इतनी जबरदस्त बनाई है कि जमीन की मिट्टी, सबसे पहले तो जमीन की मिट्टी हमारे लिए सोना है, सोना। और बाजी जमीन, ग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए यूज होती है। ग्राउंड वाटर स्टोरेज, वेरी गुड। यानी अगर बारिश का पानी आता और जमीन उसे एब्जॉर्ब ना करती, तो क्या हमको पानी सिर्फ बारिश के दिनों में मिलता? तो ये जमीन उस पानी को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेती है जमीन के नीचे। फिर आप कुआं खोदो, बोरवेल खोदो, आपको पानी मिल जाएगा। तो दिस इज जबरदस्त स्टोरेज, वाटर स्टोरेज सिस्टम, नेचुरल। उससे पहले ये बात करेंगे कि जमीन एक्चुअली हिल रही है, रोटेट और रिवॉल्व हो रही है। जो चीज कंटिन्यूअसली घूम रही हो, उस चीज पर आप कैसे रह सकते हो? जैसे आप जायंट व्हील या जो दूसरे अम्यूजमेंट व्हील्स होते हैं, उसके ऊपर आप जाके सो सकते हो। मैं जायंट व्हील पर जाके सो गई, ऐसा कभी हुआ? सपोर्ट की जरूरत होती है, पकड़ना पड़ता है। पकड़ के भी सो सकते हो आप उसको? नहीं बात। सो नहीं सकते। एग्जैक्टली, तो वो सुकून में है? जायंट व्हील, मैरी गो राउंड सुकून में है? नहीं। तो हमको रहने के लिए, बसने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए क्या चाहिए? सुकून, पीस, स्टेबिलिटी। तो अल्लाह को मालूम है। हालांकि वो घूम रही है, हम जायंट व्हील पर है, हम ऑलरेडी मैरी गो राउंड पर है, सब कुछ घूम ही रहा है, पर अल्लाह ताला ने उसे हमारे लिए फिर भी स्टेबल कर दिया। फिर भी हम इस पर सुकून और पीस हमें मिलता है। आप एक गाड़ी में जा रहे हो, बाय कार, ऑन बाइक, बाय बस, एरोप्लेन, लेकिन आपको ऐसा पीस नहीं मिलेगा जो जमीन पर मिलता है। तो यही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या जमीन को हमने बिछा नहीं दिया तुम्हारे लिए? हालांकि वो घूम रही है और तुम उस पर सुकून से रहते हो। और यही जमीन तुम्हारे लिए खाना भी उगाती है, अनाज हर तरह का। और इसी जमीन में तुम सारा कचरा भी डालते हो, तो तुम उससे फायदे की चीजें ले लेते हो और कचरा उसको देते हो। वो कचरे को भी ले लेती है और तुम्हारे लिए उस कचरे को क्या करती है? रिसाइकल करके फिर से तुम्हारे काम का बना देती है। और हम मर के भी दफनाए जाएंगे, वो हमारे सब ऐब ढाक लेगी जमीन। एग्जैक्टली, हम इसी मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में मर के दफन किए जाते हैं। तो वो हमको लाइफ देती है, हम उसको डेड बॉडीज देते हैं। जमीन से बेहतर साबिर कौन हो सकता है? अल्लाह का फर्मा बरदार कि ये जमीन सब कुछ अच्छा देती है और हम उसको सब कुछ बुरा देते हैं, फिर भी वो ले लेती है और फिर से उसे रिसाइकल करके उस मिट्टी को क्या कर देती है? फिर से फर्टाइल कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन के जितने फायदे हम देखें उतने कम है। और भी खजाने हैं जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, और अल्लाह ने इसे भी हमारे लिए फ्री ऑफ चार्ज बिछा दिया है। अब अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें गिनवाई कि क्या नहीं देखा? नंबर 1 कैमल, आयत 17 में। नंबर 2 आसमान, आयत 18 में। नंबर 3 पहाड़, आयत 19। और नंबर 4 जमीन, आयत 20। 4 चीजों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या नहीं देखा तुमने? तो देखिए, जमीन और आसमान तो हम भी देखते हैं और पहाड़ भी हमें दिखते हैं, बट अभी यहाँ कहाँ पहाड़ नजर आएगी, और ऊंट हमें अभी कहाँ नजर आएगी। तो ये चारों चीजें जो है अरब पेनिनसुला में बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है।
वहां पर एक अगर देहाती भी निकल आए और वो अपने ऊंट पर सवार होकर निकले, एक गांव वाला, अरब गांव वाला देहाती, वहां पर वो किस पर सवार होते हैं? ऊंट पर। अगर वो ऊंट पर सवार होकर निकले तो ऊंट किस पर चल रहा है? जमीन पर। तो नीचे उसके जमीन है, ऊपर उसके आसमान है, और निगाहों के सामने उसके पहाड़ है, और वो खुद ऊंट पर बैठा है। तो एक अरबिक पर्सन, उसके लिए ये चारों नजारे उसके आंखों के सामने होते हैं, बराबर? तो फिर ये डायरेक्ट चारों मिसालें और क्वेश्चंस किसकी तरफ डायरेक्टेड है? मक्का वालों की तरफ। मक्का वालों की तरफ। तो अल्लाह ताला उन्हें क्यों ये सब कुछ बता रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह की ये कुदरत, तुम अपने खालिक को नहीं पहचानते, जिसकी ये कुदरत और कारीगिरी बिल्कुल तुम्हारी नजरों के सामने जाहिर है, क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन तमाम चीजों का खालिक यानी बनाने वाला कौन है? अगर ये सारी चीजें जबरदस्त है तो इनको बनाने वाला रब, उसकी क्या शान, उसकी क्या अजमत, क्या जबरदस्त इज्जत वाला वो हमारा खालिक, मालिक, मुख्तार, फिर क्या वो नहीं हो सकता माबूदे बरहक? लिख लीजिए। क्या फिर उसके सिवा कोई माबूदे बरहक हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माबूदे बरहक? लिखा आपने ये वर्ड? लिख लीजिए, माबूदे बरहक क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताइए व्हाट इज माबूदे बरहक? अल्लाह यहाँ पे के नहीं सिवा है। कोई, हाँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वेरी गुड, हक बिल्कुल के सही साथ, जवाब दिया। हक के साथ इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। हाँ, यानी इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह है, और उसका हक भी सिर्फ अल्लाह रखता है। ओनली अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड। क्यों? अच्छा, आसमान, जमीन, पहाड़ और ऊंट अगर उसने बनाए हैं तो फिर मुझे किसने बनाया? आपको किसने बनाया? इस सारी कायनात बनाने वाला वही है। ऐसे थोड़ी है कि ये चार चीजें अल्लाह ने बनाई और बाकी सारा किसी और ने बनाया। नो, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए गए जबरदस्त। बाकी सब कुछ भी पैदा करने वाला वही है। तो फिर इबादत किसी और की कैसे? फिर इबादत में कोई और शामिल कैसे? हाउ? अल्लाह ताला ये क्वेश्चन कर सकते थे इसके बाद, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं किया। अल्लाह का कितना, यानी हम अल्लाह की रहमत को समझे। देखिए, आप और मैं कभी कभी हम जब अपने बच्चों से नाराज होते हैं, व्हेन दे टेक अस फॉर ग्रांटेड, तो हम अपने बच्चों को कहते हैं ये सब कौन लाया तुम्हारे, तुझे किसने पैदा किया? मैं तेरी माँ हूं ना। खाना कौन खिलाता है? ये सब कुछ तुम्हारा कौन प्रोवाइड करता है? जाओ, अपनी मम्मी के सिवा और कोई तुमको खाना बना के देती है तो देखो, जाओ। ऐसे भी हम लोग कह देते हैं। बट अल्लाह सुब्हानहू ताला इवन डिडंट टॉन्ट लाइक दैट। उन्होंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करके हमें सोचने पर मजबूर कर दिया और छोड़ दिया कि अभी भी तुमको सोचना है, समझना है तो समझो, वरना लेट इट बी। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। बाजी, इन्हीं पहाड़ों और मिट्टी, जमीन की मिट्टी से लेकर इन्होंने माबूद बनाए और उनको पूज रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं। ओके, गुड। अभी इसके बारे में एक हदीस भी सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हदीस
تھوڑی سی بڑی ہے بٹ سمپل ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. سن لیجئے. ایک دن ایک دیہاتی آیا، دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والا شخص کوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا پوچھا اس شخص نے؟ کہ آپ کے لوگ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، یعنی میرے آدمی نے یہ بات سچ کہی. سیکنڈ کوشچن، یہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی. اس نے پوچھا زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے. اس نے پوچھا پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. کہا پھر آپ کو قسم ہے اس اللہ کی. اب وہ آدمی کیا کہتا ہے دیکھو، اس نے پہلے کویشچنز پوچھ لیے، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، پہاڑوں کو کس نے بنایا، سب جواب اللہ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کیا اللہ ہی نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے کہا کہ ہم پر رات دن میں 5 نمازیں فرض ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ کیا اللہ نے اس نے کہا اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہیے کہ کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں زکوٰۃ بھی فرض ہے. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار حج کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں سچ ہے. تو پھر وہ آدمی یہ سب کچھ سن کر کنفرم کر لیا اس نے. پھر اس نے صرف ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائیں ابھی میں ان باتوں پر نہ کچھ زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا، یعنی آج سے میں یہ سارے حکم پورے کروں گا. 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، حج، اور تب تک روزے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے روزے کا ذکر اس میں نہیں ہے. وہ اتنا کہہ کر چلا گیا، گاؤں سے آیا تھا، کنفرم کیا، چلا گیا کہ آج کے بعد میں یہ سب کچھ پورا کروں گا، اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. اور وہ چلا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے، اگر یہ سب کچھ کرے گا جو اس نے کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حدیث اوور. تو دیکھیے یہ سوال تو ہم سب کے دلوں میں آنے چاہیے، بہت نیچرل ہے. ہمارے بچے جب بہت معصوم ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، پہاڑ، زمین، آسمان، اور وہ بہت معصوم ہوتے ہیں.
तब हम उन्हें बता दें कि ये सब हमारा रब उसने हमें बता कर दिया है फ्री ऑफ चार्ज, इसलिए अब हम उसकी इबादत वैसे करें जैसे उसका हुक्म है। तो बच्चों के दिल में ये बात बहुत जल्दी आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप म्यूट हो गए। ओ यस, आयत 21, फज़क्किर, फ यानी फिर, ज़क्किर हुक्म है, किसको दिया है कमांड? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि फिर आप जिक्र कीजिए, फिर आप नसीहत कीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो यू कीप ऑन रिमाइंडिंग। ज़क्किर, नसीहत का मतलब क्या होता है? रिमाइंड करना। 21, इन्नमा अंत मुज़क्किर, इन्नमा बेशक, अंत आप, अंत आप, मुज़क्किर आप तो नसीहत करने वाले हैं। यू आर द ओनली रिमाइंडर सेंट बाय अल्लाह ताला। मुज़क्किर का मतलब क्या होता है? जो नसीहत करे, जो जिक्र करे, वो मुज़क्किर। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करने वाला बनाकर भेजा। तो आपका तो काम ही है, आपकी तो जिम्मेदारी ही है कि आप लोगों को रिमाइंड करते रहे। अब अगर ये सूरा अभी कौन पढ़ रहा है? आप और मैं। तो फिर ये आयत मेरे और आपके लिए भी है कि फिर मुझे और आपको भी ये काम करना है। फज़क्किर, फिर हम रिमाइंड करें, और बेशक हम रिमाइंड करने वाले बनाकर भेजे गए हैं। बराबर। जैसे आप, जब तक आपके बच्चे नहीं हुए हैं, है ना, तब तक आपको हर चीज कौन याद दिलाता रहता है? आपकी माँ। माँ कहती है बेटा ये खा ले, खाने से पहले हाथ धो ले, बेटा ये ऐसे कपड़े, ये ऐसा उठना, ये ऐसी पढ़ाई। बार बार पूरा दिन माँ क्या करती रहती है? बच्चे को Reminder. रिमाइंडर्स। अब जैसे ही वो बच्चा, वो औरत बड़ी होकर फिर वो माँ बनती है, तो अब वो क्या बन जाती है? फिर अब वो रिमाइंडर देने वाली बन जाती है। एंड दिस साइकिल गोज ऑन, राइट और रॉन्ग? क्या ऐसा होता है कि मेरी माँ ने दी अभी रिमाइंडर्स, अब मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो ही थी रिमाइंडर देने वाली? ऐसा होता है? नहीं। तो हम इस आयत को ऐसा ना ले कि रिमाइंडर्स देने वाले सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हमको रिमाइंड किया, अब हमारा काम है हम क्या करें? दूसरों को रिमाइंड करें, दूसरों को नसीहत करें। Isn't this a vicious cycle? Yes, it is. It is. समझ आया? जैसे माँ बच्चे की बात से बात हमारी समझ आ जाती है कि हर माँ फिर अपने बच्चे को नसीहत करती रहती है, पूरा दिन रोकती टोकती है। वैसे हमें भी यही काम करना है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी नसीहत करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी नसीहत करनी है बताओ? कि हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की, और जो उसका हक के लायक है उसी को एवरीथिंग इज ड्यू। ओके, इन जनरल अगर बात करें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बट दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बट अगर हम जनरल बात करें तो हमें रिमाइंडर्स कहाँ से देने हैं? अपनी मर्जी कुरान से या कुरान और सुन्नत। कुरान से? एग्जैक्टली। तो अब आप ये देखिए कि एक्चुअली कुरान एक तस्किरा है ना? ज़करा, तस्किरा। कुरान इटसेल्फ इज अ बुक ऑफ रिमाइंडर्स। कहाँ से आई? अल्लाह ने नसीहत की किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने नसीहत की सहाबा इकराम को, अब वो हम तक पहुंची है। सो इट इज अ चेन विच बिगिंस फ्रॉम अल्लाह ताला।
the source is اللہ تعالیٰ، اور وہاں سے وہ ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ. اب ہمارا کام ہے کہ اس چین کی میں ایسی کڑی بن جاؤں کہ میں نیکسٹ جنریشن تک پہنچانے کا کام کروں. تو پھر آپ کون سی چین کا حصہ بن گئے؟ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یس، دا موسٹ نوبل، دا موسٹ ڈیوائن گولڈن چین کا آپ حصہ بن سکتے ہو. وہ نبیوں کا کام آپ کر سکتے ہو اگر آپ نصیحت قرآن کے مطابق کرے، اپنی مرضی سے نہیں. اور طریقہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، قرآن میں کیا انداز ہے اللہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، ان کا طریقہ، ان کی سنت. تو پھر مجھے اور آپ کو صرف میسج نہیں کنوے کرنا ہے، طریقہ بھی سیم فالو کرنا ہے. کیا ہماری زبان میں اتنی مٹھاس، اتنا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس بات کو آگے پہنچانے کا؟ تو isn't طریقہ also very important? it is سنت Yes. طریقہ ہو. So the manner in which you convey, so you have to convey and convey in the best possible sunnah manner. تب ہم بن جائیں گے مذکر. تو کتنے لوگ مذکر بننا چاہتے؟ سمجھ گئے ابھی مذکر کا مطلب؟ کتنے لوگ مذکر بننا چاہتے، اس گولڈن چین کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے آسان ہے، مشکل ہے؟ آسان ہے. یس، کیونکہ بولنا تو بہت آسان ہے نا. بولنا بہت آسان ہے، لیکن ہم کون سی بات بولتے ہیں؟ جو بات پہلے تو مجھے اچھی لگے، سچی لگے، جو بات جس کا بات پر میں خود عمل کروں، تو پھر وہی بات میں دوسروں کو بھی بتاؤں، ہے نا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب مذکر بن جائیں، کیونکہ ہم سے یہ سوال بھی ہونے والا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم کو تو علم ملا، پھر تم نے اسے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور جو نہیں پہنچائے گا پھر وہ نقصان میں بھی ہوگا، سوال بھی کیا جائے گا، وہ خسارہ بھی اٹھائے گا. یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ we have to convey this. آیت 22. اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا فرما رہے؟ اگر ان سے جو فرما رہے وہ ہمارے لیے بھی ہوگا. لست علیہم، لست، لس یعنی نہیں، جیسے لیسا سے بنا ہے لس، اور ت یعنی آپ. لست نہیں ہے آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم ان پر، بمسیطر، بمسیطر یعنی داروگا، پولیس مین، کنٹرولر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی آیت میں آیا آپ کا کام صرف ریمائنڈرز دینا ہے، کنوے کرنا ہے، لیکن آپ کو ان کے اوپر واچ مین، پولیس مین بنا کر نہیں بھیجا گیا. آپ ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے. تو صرف آپ کو میسج پہنچانا ہے، اور ایک بار نہیں، بار بار پہنچائیے، الگ الگ انداز میں پہنچائیے، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، کبھی تھوڑا خبردار کر کے، کبھی خوشخبری دے کے پہنچاتے رہیے. لیکن یو کی ناٹ فورس اینی بڈی. You are not supposed to stand on their heads. گن پوائنٹ پہ بھی نہیں، تلوار کے نوک پر بھی نہیں، غصہ کر کے بھی نہیں، گالی گلوچ کر کے تو نیور. کسی بھی غلط انداز میں آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے. یہ کس سے کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ کس نے فرمایا؟ وسلم. اللہ تعالیٰ. تو پھر میں اور آپ، ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے
कि बस हम कन्वे करते रहे, रिमाइंडर्स देते रहे भले तरीके से, लेकिन हम किसी के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए, किसी को फोर्सफुली हम इस्लाम की तरफ या इस्लाम के रिमाइंडर्स भी फोर्सफुली आप नहीं किसी को कर सकते। क्या, क्यों ऐसा है? कोई जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों कोई जबरदस्ती नहीं करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? क्योंकि हम Because you are टेस्ट में हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं अभी। एग्जैक्टली चांदा आंटी। Ji, same answer, and we have to convey. You may not be able to convince them, but do convey it to them. Yeah, you can convey and there is no need to. You can convince also, but then you have to leave upon them कि चाहे वो माने या ना माने, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को फ्री विल दे के भेजा है। जबरदस्ती करनी होती तो अल्लाह ताला ही खुद जबरदस्ती करते। और जैसे सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन को अल्लाह ने, फरिश्तों को अल्लाह ने अपना फरमाबरदार बना दिया है कंपल्सरीली, नो चॉइस, वैसे अल्लाह ताला हमें भी वैसे ही बना देते। तो अगर करना होता जबरदस्ती तो अल्लाह ही कर देता। उसने जब हमें फ्री विल दिया है तो फिर मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हक नहीं कि किसी पर जबरदस्ती की जाए। ओके, क्योंकि हमारा मास्टर, हमारा जज, हमारा मालिक अल्लाह है, और रिजल्ट और एग्जाम और टेस्ट सब उसके हाथ में है। हिदायत देने वाली जात अल्लाह है, फैसला और हुक्म और इंसाफ करने वाला भी वही है, लौटाए भी उसी के पास जाने वाले। तो फिर मुझे और आपको दुनिया में किसी का जज नहीं बनना है, ना किसी के ऊपर वॉचमैन। हम लोग बहुत निगरानी रखते हैं कि वो उठी नहीं थी फजर में, उसने नमाज नहीं पढ़ी, रमजान के महीने के रोजे उसने नहीं रखे, ये लोग तो रोज पार्टी करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को जज करते रहते। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, लीव देम अलोन। हाँ, तुम्हारा काम है, तुम सिर्फ भले तरीके से रिमाइंडर्स दे सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आयत 23। हाँ, तो क्या फरमाया कि नहीं है आप उन पर दारोगा, वॉचमैन। 23, इल्ला, सिवाय, मन तवल्ला व कफरा, जो मुड़ गया, यानी आपने उसको रिमाइंडर दिया लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी, वो पलट गया, वो कफर, और उसने इनकार कर दिया। तो जो ऐसा करे कि वो आपकी बात न माने, वो इस्लाम की तरफ न आए, अपना मुंह फेर ले, इस्लाम का इनकार कर दे, तो उसके लिए क्या है? 24, फयुअज़्ज़िबुहुल अज़ाबल अकबर, सब कंटिन्यूस है। फिर अजाब देगा उसको, कौन? अल्लाह। तो अजाब देने का काम किसका है? अल्लाह का। कैसा अजाब? अजाबल अकबर, सबसे बड़ा अजाब, द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देने का काम अल्लाह का है, मेरा और आपका नहीं है कि हम लकड़ी लेके खड़े हो जाते हैं किसी को सजा देने के लिए, या जबान से उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। सो ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। तो जो मानेगा उसका फायदा है, जो नहीं मानेगा फिर अल्लाह उसे अजाब देगा, उसे सजा देगा। कहाँ? दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं 25, इन्ना इलैना, इन्ना बेशक, इलैना हमारी तरफ है, इयाबहुम लौटना उनका। कहाँ जाएंगे वो बच के? ये तो एग्जामिनेशन हॉल है, और फिर दे हैव टू रिटर्न टूवर्ड्स अस, अल्लाह की तरफ।
कहीं बच के छूट के भाग नहीं सकते। 26 तुम इन अलैना हिसाबहुम, तुम फिर, इन अलैना बेशक, हमारे जिम्मे है, ये हमारा काम है, हिसाबहुम उनका हिसाब लेना। So it is upon us to bring them to account. उनकी accountability, हिसाब किताब, फैसला, अजाब या जन्नत, ये अल्लाह का काम है। तो ये अल्लाह ही करेंगे, लौटना भी अल्लाह की तरफ है। सो फिर जिसने दुनिया बनाई, तरह तरह की जबरदस्त हमारे लिए चीजें बनाई, अगर हम उसी की बात ना माने, फिर पहुंचाने वाले रसूल भी है, बेहतरीन से बेहतरीन रसूल, और बार बार रिमाइंडर्स भी है, और अब तो हमारे हाथ में कुरान भी है। इसके बावजूद ना माने तो फिर हिसाब और लौटना अल्लाह ही की तरफ है। इतनी सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा लॉजिक है। जो बात समझ नहीं आई तो फिर यू हैव टू पे द प्राइस। ये है इस सूरह का थीम, क्योंकि ये लोग इसी बात पर तो यकीन नहीं करते थे। किस बात पर? कयामत के आने पर और दोबारा उठाए जाने पर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि सिर्फ दोबारा उठाए ही नहीं जाएंगे, बल्कि हिसाब भी होगा। यहाँ से कुछ पढ़ लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अल्लाह की रिसालत की तबलीग किया करो। ये आपका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस्लाम को, कुरान को बेहतरीन तरीके से, सुन्नत तरीके पर लोगों तक पहुंचाइए। आप पर सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम है। हिसाब हमारे जिम्मे है, आप उन पर मुसल्लत नहीं है। दैट मीन्स Watchman. वॉचमैन, यू आर नॉट टू बी फोर्सिंग देम। जबरदस्ती आप नहीं करोगे, आप जबर करने वाले नहीं। आपको तो उनके दिलों में ईमान पैदा, आप उनके दिलों में ईमान पैदा नहीं कर सकते, आप उन्हें हिदायत नहीं दे सकते, आप उन्हें ईमान लाने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हिदायत नहीं दे सकते, तो आप और मैं किस खेत की मूली है? और आपसे कहा गया है वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आपको बार बार नसीहत, रिमाइंडर्स देते रहना। अब क्या होता है मेरे और आपके साथ कि अगर हम किसी को कुछ बताते हैं और वो नहीं सुनते, वो नहीं आते हमारी कुरान क्लास में, तो हम कितने जल्दी गिव अप कर देते, हम जजमेंटल हो जाते, हम नाराज हो जाते, इजंट इट? अगर अल्लाह के महबूब, द बेस्ट ऑफ द पर्सनालिटीज, ऐसे जबरदस्त अखलाक के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों ने नहीं मानी, मेजॉरिटी ने नहीं मानी उस वक्त मक्का में, तो क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? किसी से बात करना छोड़ दिया? अबू जहल से बात करना छोड़ दिया? अबू तालिब से बात करना छोड़ दिया? उनसे नाराज हो बैठे? हम लोग तो बात करना छोड़ देते, किसी के घर जाना छोड़ देते कि मैंने इतनी बार बोल दी वो नहीं सुने, isn't it? So this is a big lesson for us. अभी देखिए एक और हदीस, ये वाली हदीस पढ़ लेती हूँ। सही मुस्लिम
तिरमिजी मुस्नद अहमद की रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, मुझे हुक्म किया गया है, मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं, मैं लोगों से लड़ूं, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। जब वो इसे कह ले तो उन्होंने अपनी जान माल मुझसे बचा लिए, मगर इस्लाम के हक के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई। तो ये जो लड़ू वर्ड आया है यहाँ पर कि मैं लड़ूं, तो ये उन जंगों की तरफ इशारा है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जंग अपनी तरफ से इनिशिएट की थी, शुरुआत की थी? बताइए। नहीं। नहीं। तो क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूअसली इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे तो लोग आपके दुश्मन बन गए अल्लाह की खातिर, नथिंग पर्सनल। तो वो खुद आपकी जान के दुश्मन भी बन गए और फिर वो लड़ाई करने आए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खातिर तबलीग करते करते मैं लड़ूं आपके साथ, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी जान भी नहीं चाहिए, आपका माल भी नहीं चाहिए। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि आप ईमान ले आओ। अगर आप लड़ना चाहोगे तो बदले में मुझे लड़ना ही पड़ेगा, तो मैं लड़ूंगा। और अगर आप प्यार से बात मान लोगे तो प्यार से बात खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु प्यार से मान गए, तो क्या उनसे लड़ना पड़ा? नहीं। दूसरे लोग लड़ने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ना पड़ा, लेकिन उनका कोई पर्सनल गेन नहीं था। तो ये हदीस हमें इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं इस आयत पर। ये जो आयतें अभी हमने पढ़ी, इन पर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि आपको तो सिर्फ नसीहत करनी है, फिर आपने जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, ये सारी जंगे क्यों लड़ी? फिर ये तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो गया। तो अब ये हदीस हमें बताती है कि क्योंकि वो दुश्मन इस्लाम की वजह से बने और वो लड़ने आए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदले में लड़ना पड़ा, इन देयर ओन डिफेंस, अल्लाह की खातिर। सो यू नो व्हाई अभी ये आयत और ये हदीस क्या प्रूव करती है? क्या प्रूव करती है? कि कोई भी लड़ाई, कोई तलवार, कोई गन किसी को शुरू में नहीं उठानी है। इस्लाम किसी को ईमान लाने पर मजबूर नहीं करना है, बट इफ दे इनिशिएट देन यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। क्लियर हो गई बात? अब ये बात अगर हम देख ले कि दुनिया में इवन मुसलमानों को मुसलमान ही कितना ब्रेन वॉश करते हैं और उन बेचारे मासूम नौजवानों को उकसाते हैं to take the wrong steps, to initiate with the weapons, which is so wrong. तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातें हम अपने बच्चों को बताएं ताकि कोई और उनका ब्रेन वॉश ना कर सके इन आयतों के जरिए और इस हदीस के जरिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।